આપણે આજે હવે મેનેજમેન્ટ સાથે ખાસ કરીને ચર્ચા કરવાની છે અને આજે આપણી સાથે મેટ્રોપોલિસનું મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યું છે. મેટ્રોપોલિસે હાલમાં જ એક નવું અધિગ્રહણ કર્યું છે આગ્રાની અંદર. આગ્રા સ્થિત સાયન્ટિફિક પેથોલોજીનું તેમણે અધિગ્રહણ કર્યું છે અને ઓલમોસ્ટ 55થી 83 કરોડની વચ્ચે આ અધિગ્રહણ થઈ શકે છે. એટલે આ અધિગ્રહણને સમજવા માટે, આગળની બિઝનેસની રણનીતિ સમજવા માટે અને કંપનીના ઓવરઓલ એક આઉટલુકને સમજવા માટે આપણી સાથે અત્યારે મેટ્રોપોલિસ હેલ્થકેરના પ્રમોટર અને એક્ઝિક્યુટિવ ચેરપર્સન अमीरा शाह मैडम जुड़ाई गया है. अमीरा जी वेलकम, स्वागत आपનું. और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपने वेस्टर्न यूपी में जो नया एक्विजिशन हुआ है, ये B2C एक्सपांसन है, क्या रैशनल है इसके पीछे और आगरा जैसे सिटी को चुनने में भी क्या आपके थॉट प्रोसेस रही है? So, for us, I think the acquisition in Agra of scientific pathology, where of course we are going to be 90% shareholders and Dr. Shobh Sharma will be 10%, is a very exciting entry into UP. Last year, we decided UP is going to be a very important state for us, and we built 8 of our own labs, Metropolis labs there, and 80 collection centers. And while those are growing well and doing well for us, acquiring an old lab which is very advanced and considered the best in Agra over 40 years is a great beachhead for us to really enter into West UP and really be able to establish our credibility and our presence there. So very excited about this acquisition, and as we go forward, currently it has 3 labs and 15 centers. We'll be adding many more collection centers, not just in Agra, but all across Western UP, and making Agra as the regional reference lab to support all of it. So that's where we are. And while this is our second acquisition in North India, the first was Core Diagnostics. We announced about 2-3 months ago. We are hopeful to continue to build a string of pearls across North India of very good quality lab chains that can come and be part of the Metropolis umbrella. એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી કહી રહ્યા છે કે ઉત્તર ભારતમાં તેમણે પોતાનું પ્રેઝન્સ વધારવું છે. થોડો સમય પહેલાં પણ એક અધિગ્રહણ કર્યું હતું અને આગ્રા અને પશ્ચિમ યુપીની અંદર પોતાનું પ્રેઝન્સ વધારવા માટે કંપની દ્વારા આ એક એક્વિઝિશન કરવામાં આવ્યું છે, અધિગ્રહણ કરવામાં આવ્યું છે. બટ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, द एक्विजिशन इज़ वैल्यूड बिटवीन 55 to 83 करोड़, 12.2x एबिटा मल्टीपल. हाउ डज दिस कंपेयर जो आपकी जो पास्ट डील हुई है उसके साथ इसका क्या कंपैरिजन है, और क्या आपको ये वैल्यूएशन पे जिस पे आपने एक्विजिशन किया है वो आपको कंफर्टेबल लग रहा है? अब देखिए, तो हमने कहा है कि हम 65 करोड़ अभी पेइंग करेंगे क्लोजिंग पे, और जून 25 पे हम ऑडिट अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, और उसके बेसिस पे अगर ज़्यादा भी जा सकता है 83 तक और कम भी जा सकता है 55 तक बेस्ड ऑन एन अचीवमेंट. सो इट इज़ अ कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर. और आप देखिए तो इट इज़ अ 12.2 मल्टीपल विच इज़ अ वेरी फेयर मल्टीपल फॉर a leading chain like scientific pathology in Agra. And because you're really paying for quality, ethics, customer connect, and leadership is what you're paying. એટલે જો ખાસ કરીને અત્યારે 65 કરોડનું એક પેમેન્ટ કરશે, ત્યારબાદ એક અસેસમેન્ટ યરના જે આંકડાઓ આવશે કમાણીના, એના પર અસેસમેન્ટ કરીને 83 કરોડ વધુમાં વધુ અને ઓછામાં ઓછું 55 કરોડનું અહીંયાથી પે આઉટ આપણને કંપનીને આવતું જોવા મળશે. એટલે એના પર એક નજર રાખીશું. और एक जब हमने पिछली बार भी Q3 आपके CEO से बात कर रहे थे, CEO सर से, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक एक्सपांसन की स्ट्रैटेजी है, और ये जो एक्विजिशन है वो एक्विजिशन किस तरीके से आपकी एक्सपांसन की जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर एकदम फिट बैठ रहा है, क्या कारण है उसके? So, Metropolis is leader in West of India and South of India. And while we are doing well in North of India, 8% of our revenue contribution of the group comes from North India. हम interested थे कि हम ये North India का contribution हम बढ़ाएं और हम आगे ले चले. तो core diagnostics, scientific और आगे हम अगर कुछ करेंगे, तो it is all to basically increase the contribution of North India to the overall revenue. North India is a fast-growing market, especially markets like UP. You see a lot of diseases, not only diabetes, heart diseases, but also cancers, hepatitis in Punjab, etc. So Metropolis wants to be in a place कि हम पूरी अपनी 4,000 टेस्ट मेन्यू हम सब पेशेंट्स को हम अवेलेबल और एक्सेसिबल बना सकें, और ये क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स हम नॉर्थ इंडिया को लेकर आए, क्योंकि अभी तो उनको सब जगह पे एक्सेस है नहीं,
and we feel there is a big market to provide solutions. એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી કંપનીની જે એક્સપાન્શન સ્ટ્રેટેજી છે નોર્થની અંદર એટલે કે ઉત્તર ભારતમાં તેમની અત્યારે હાજરી ઓછી છે, વેસ્ટર્ન ભારતમાં પ્રભુત્વ એટલે કે પશ્ચિમ ભારતમાં તેઓ પ્રભુત્વ ધરાવે છે, એટલે ત્યાં આગળ હવે માર્કેટ કેપ્ચર કરવા માટેની તેમની આ નવી રણનીતિ છે ને એટલા માટે તેઓ અહીંયાથી આ उत्तर प्रदेश पर खास वो फोकस कर ही रहा है। और जब हमने पिछली बार बात की थी सीईओ सर से, तब उन्होंने बताया था महाराष्ट्र एक बहुत ही प्री डोमिनेंट आपका कंट्रीब्यूटर रहा है आपके टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में। जानना चाहूँगा कि ये जो और कोई कौन सी लोकेशंस ऐसी है आपकी अभी पाइपलाइन में जहाँ पर आप अभी एक्सपांड करना चाह रहे हैं, या तो एक्सपांड अभी बातें कुछ एडवांस स्टेज में हो जिसके बारे में आप कुछ बता सकें? बातचीत तो चलती रही है अभी, इट्स नॉट फाइनलाइज्ड येट, बट अगर कुछ होगा तो ऑब्वियसली हम अनाउंस कर लेंगे। जी। और मैडम ये भी एक चीज़ जाननी थी कि ये जो एक्विजिशन है, ये एक्विजिशन किस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन ये दोनों के ऊपर आने वाले क्वार्टर्स में हमें इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा? आपने जो अभी आपके जो एडवांस एस्टीमेट होंगे उसके बारे में अगर बता पाए कि कितना ये ग्रोथ पे कन्वर्ट हो सकता है आपका? ये एक्विजिशन आप देखिए तो उनका रेवेन्यू 26 करोड़ है पूरे साल का 24-25 में, एंड इट्स प्रॉफिटेबल बिजनेस, मेट्रोपोलिस मार्जिन से थोड़ा ज़्यादा है। तो इट इज़ अ गुड क्वालिटी बिजनेस जो प्रॉफिटेबल है, स्केलेबल है, और इसीलिए हमने खरीदा है क्योंकि इट्स अ गुड बेस टू स्टार्ट। એટલે જો 21 કરોડની અત્યાર સુધીની આવક છે આ નવી કંપનીની જેનું અધિગ્રહણ કર્યું છે અને ક્ષમતાઓ અહીંયા ખાસી એવી દેખાઈ રહી છે। आपने जब कोर डायग्नोस्टिक का एक्विजिशन किया था और अभी ये एक्विजिशन किया है, तो यहाँ से टॉप लाइन के बेसिस पे देखिए तो FY26 के लिए अभी आपको कैसे विजिबिलिटी नज़र आ रही है? क्योंकि एक जो आपके इनऑर्गेनिक ग्रोथ इन दोनों भी जो एक्विजिशन है वहाँ पर से भी आते हुए दिखेंगे, तो FY26 पे टॉप लाइन कैसा रहेगा? FY26 looks actually very positive because हमारी जो अपनी ग्रोथ है मेट्रोपोलिस की, वो तो ये साल भी स्ट्रांग रही है और अगले साल भी स्ट्रांग रहेगी, और उसके ऊपर ये जो एक्विजिशंस हमने क्लोज किए हैं वो ऑब्वियसली रेवेन्यू उसमें वो अगले साल में भी आ जाएगी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग लीप फ्रॉम दिस ईयर टू नेक्स्ट ईयर, नॉट ओनली इन रेवेन्यू बट ऑल्सो इन मार्जिन। એટલે જો ખાસ કરીને આવતા વર્ષે એક રેવન્યુ અને ગ્રોથની અંદર એક સારો ઉછાળો, એક કૂદકો જોવા મળે એવી અપેક્ષા તેઓ અહીંયાથી કરી રહ્યા છે। और ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो दोनों एक्विजिशन आप जैसे प्रीडोमिनेंटली आपका वेस्ट का एक कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है, अगर जोग्राफिकल वाइज हम लोग कंट्रीब्यूशन देखने जाए तो नॉर्थ में कितना ये इसका शेयर बढ़ेगा अभी ये दोनों एक्विजिशन के बाद? How will they help in? नॉर्थ साइड पे रेवेन्यू शेयर। अब देखिए तो अभी मैंने जैसे कहा 8% कंट्रीब्यूशन है, हमें लग रहा है कि 13 से 14% हो जाएगा ये दो एक्विजिशंस के बाद। सो देयर विल बी अ गुड ग्रोथ फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। એટલે જો ઉત્તર ભારતથી આવતી જે આવક છે લગભગ 8 થી 10% જેટલી અહીંયાથી વધી શકે છે, એટલે એના પર એક ખાસ નજર અહીંયાથી તમારે રાખવાની છે। और सबसे आखिर में मैडम ये भी एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो जनवरी फरवरी का महीना गया है सीज़न का, थोड़ा वॉल्यूम के हिसाब से आपके कैसा रहा है? सीजनल अलाइन को देखते हुए कुछ अच्छे यहाँ से हमें FY24 के लिए संकेत मिलेंगे, सॉरी ये फोर्थ क्वार्टर के लिए कोई अच्छे संकेत मिलेंगे यहाँ पर? So every year is different. Last साल आप देखिए तो Jan, Feb, March was a pretty positive quarter. Normally Q4 हमारा सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है इंडस्ट्री में, लेकिन this year for some reason February has been not a very good month. में अच्छी बात जो है कि लोग हेल्दी रह रहे हैं तो टेस्टिंग की जरूरत कम हो रही है, बट हमारे बिजनेस के लिए obviously that means lower numbers of patients. So overall इंडस्ट्री में Jan, Feb इतनी खास नहीं रही है। March has started off well. We'll see where the quarter lands up. But इसमें कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है, बस इलनेसेस सीजनल होती हैं, इसीलिए हर क्वार्टर इक्वल नहीं हो सकता। और हर जगह आप देखिए तो नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में अलग मौसम होता है, अलग जब रेन्स होते हैं, अलग विंटर होता है, तो हर जो लिंकेज होता है हमारी बिजनेस से इज मैक्सिमम टू डू विद वेदर एंड मैक्सिमम टू डू विद इलनेसेस। सो
वो ही टाइम पे जब वेदर बहुत अच्छा है तो ज्यादा ठंडी नहीं है, ज्यादा गर्मी नहीं है, तो इलनेसेस ज्यादा आती है। एंड दैट्स व्हाट हाउ फेब्रुअरी हैज बीन इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। એટલે જો કદાચ અત્યાર સુધી તો થોડોક ફેબ્રુઆરીનો મહિનો ખરાબ રહ્યો છે, પરંતુ ઓવરઓલ Q4ની અંદર એક સારા વોલ્યુમ રહેવાની અपेक्षा અહીંયાથી છે, એટલે એના પર एक ध्यान रखता रहीશું। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्विजिशन पर इंसाइट हमारे साथ और दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। तो खास કરીને મેટ્રોપોલિસનું મેનેજમેન્ટ